Today we'll see the topic opioids. Opioids are nothing but resinous extracts derived from the dried capsule of poppy plant, which is Somniferous papaver. Opioid analgesics का there is classification देखा जाए तो there is we have opioid, we have opioid agonist, we have opioid antagonist, and we have complex action opioids. Opioid agonist में we have natural, semi-synthetic and synthetic. Natural everyone knows is morphine and codeine. Morphine का artificial one that was humanly made is diacetyl morphine, which is heroin and fall codeine. तो morphine का heroin हो गया, इसका fall codeine हो गया. Here we have fentanyl, tramadol and pethidine, synthetic में. Complex action में we have antagonist agonist and we have mu agonist and kappa antagonist. इसमें we have pentazocine, इसमें we have buprenorphine, morphine. इसमें तो antagonist में तो we have naltrexone and naloxone. naloxone कैसे काम करता है? एक तो रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, तो इधर आके अगर बाइंड कर दिया तो वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, और अगर यहाँ पे मॉर्फिन है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा. Now there is three types of receptors. We have mu receptors, we have kappa receptors, and we have delta receptors. ठीक है. kappa receptor पहले mu receptor का बात करते हैं. The actions of mu receptor go as sacrum, and we'll discuss further. पहला वाला में sedation and drowsiness, hypnosis at higher doses, and analgesia. These two are linked. ऐसा क्यों है? क्योंकि analgesia कैसे होता है? It acts on mu receptors because this is mu receptor का action. तो what is going to happen is वो mu receptor पे act करेगा and it will cause sedation, drowsiness, hypnosis, then mental confusion. तो the perception of pain will be changed, the threshold of pain will be higher. तो हम analgesia के लिए क्या करते हैं? Morphine is given in lower doses, morphine is given in higher doses. This is for sharp aching pain, which is quicker. This is prolonged and dull pain के लिए lower doses of morphine. उसके बाद आ जाता है cough suppression, constipation and respiratory depression. ठीक है, and coma. ठीक है, coma, respiratory depression and meiosis, which is pinpoint pupil, which is C, P and R are the triad for opioid poisoning. This is the most important, this is the most common feature, this is the most important feature, and this is always present. Coma, ये तो हर एक poisoning में coma हो ही सकता है. Respiratory depression कैसे होता है? Medulla में we have respiratory center, उसका sensitivity to CO2 को क्या करेगा? Sensitivity to CO2 को कम कर देगा, तो rate and depth of respiration कम हो जाएगा. There is euphoria. This shows most amount of euphoria. That's why it's the most highly addictive drug. उसके बाद then we have meiosis. Meiosis कैसे होता है? Third cranial nerve, oculomotor nerve को stimulate करता है and it causes constriction of pupil and pinpoint pupil हो जाता है. So this is sacrum. Sacrum के बाद we have बहुत सारे यूजेस इसके. सेक्रम, नो गैप, ठीक है, PHIV, फिव. सेक्रम, नो गैप, फिव. ठीक है. नो इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग. ये क्यों होता है? नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है क्योंकि CTZ सेंटर ऑफ मेडुला को स्टिमुलेट कर देता है. गॉल स्टोन हो जाएगा. एब्डोमिनल कॉलिकी होगा. एब्डोमिनल कॉलिकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ morphine or opioid analgesics is one of them is colicky pain.
क्योंकि अगर ये पेन हो रहा है तो हम ऑलरेडी उसको वर्स करना नहीं चाहिए। रीनल फेलियर में भी हम नहीं देते, और किसी का अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर या हेडेक्स है तो उसमें हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि RC, VC, IC, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, उससे वेसोडाइलेशन हो जाता है, वेसोडाइलेशन से CSF का प्रेशर बढ़ता है, CSF अगर बढ़ गया तो फिर वेसोडाइलेशन से CSF बढ़ेगा और उससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कोई ग्लूकोमा हेडेक जैसा कंडीशन है वो वर्सन हो सकता है। देन वी हैव ड्यू टू यूफोरिया वी हैव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, वी हैव इचिंग, रैश एंड अर्टिकेरिया ड्यू टू, है ना, ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज, ये हिस्टामिन रिलीज कराता है। वी हैव हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन एंड वेगल स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हाइपोटेंशन होता है। और उसके बाद वी हैव प्रोलैक्टिन रिलीज। ये तो हो गया अपना म्यू रिसेप्टर की बात है। कप्पा इज वेरी मच सेम, एक्सेप्ट कप्पा में क्या होता है, ये यूफोरिया नहीं कराता है, ये डिस्फोरिया कराता है। दैट्स वन। सेकेंड, ये डायूरेसिस कराता है। इससे देयर इज डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन, इसमें लेकिन डायूरेसिस हो जाता है। एंड डेल्टा सिंस इट इज एस, तो ये सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया करा देता है। सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया, इसमें जो एनाल्जेसिया होता है वो स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया होता है। We have discussed the classification, uses, receptors and contraindications of opioid analgesics. इसके बाद में talk about the side effects. Side effects include same चीज़ है, ठीक है, nausea and vomiting, respiratory depression, itching, urticaria, rashes due to histamine release, hypothermia, hypotension, dependence, है ना, डिपेंडेंस के बाद डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन, और उसके बाद ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड मेंटल स्टेट ऑल्टरेशन, मेंटल क्लाउडिंग, ठीक है। अभी वी विल डिस्कस, पहले तो विल डिस्कस द डोजेस, ठीक है, ऑफ मॉर्फिन एंड नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज यूज 0.4 to 0.8 mg IV every 1 to 4 hours. Very short duration of action. This is for opioid poisoning. Morphine is used 10 to 50 mg, 10 to 15 mg, 2 to 6 mg, 2 to 3 mg. This is intrathecal, this is intravascular, intravenous, sorry, this is intramuscular or subcutaneous, and this is per oral. ठीक है. Now we'll discuss a very easy condition which is opioid poisoning. Opioid poisoning में we have CPR triad, which is respiratory depression, pinpoint pupil and coma, ठीक है। उसके अलावा we have normal आपका hypotension, shock, convulsions and cyanosis is extra, तो ये याद रखना है CPR triad। and extra features में we have HSC, hypotension, shock, convulsion and उसके साथ साथ cyanosis। कैसे करेंगे हम? पहला चीज सबसे हम हॉस्पिटलाइज करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, वेंटिलेटर पे चढ़ेंगे और उसके बाद हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक लवाज हम किससे करेंगे? पोटेशियम पर मैंगनेट, KMN से याद कर सकते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। वेंटिलेटर से हम क्या करेंगे? पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन करेंगे और उसके बाद एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन तीनों मेंटेन हो जाएगा और हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वेंटिलेटर फॉर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट से गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। फिर हम नैलोक्सोन दे देंगे 0.4 to 0.8 mg every 1 to 4 hours because it has a short duration of action. ना अगर हमें कोई ओपियोइड का यूज पूछेगा तो we'll say A, B, C, D. D फॉर डायरिया, उसमें हम लोपेरामाइड यूज करेंगे। C फॉर कॉफ, उसमें हम कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन यूज करेंगे। ब्रेथलेसनेस ड्यू टू पल्मोनरी इडेमा, ठीक है।
और इसी पल्मोनरी इडियोमा को हम बोलते हैं कार्डियक एस्मा, विच इज ड्यू टू acute लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे मॉर्फिन। दिस इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया वी यूज इन प्री एनेस्थेटिक कंडीशन, वी यूज इट इन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड वी यूज इट पोस्ट एनेस्थीसिया। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट्स बिफोर एडमिनिस्टरिंग एनेस्थीसिया लाइक केटामिन, लिग्नोकेन वगैरह, हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फिन और पैथिडीन दे देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग में हम मॉर्फिन देते हैं, पोस्ट में हम पैथिडीन देते हैं। और एनेस्थीसिया कैसे होता है हमको पता है, सेडेशन, ड्राउजीनेस करता है, ऑल्टरेशन कर देता है, मतलब एंजाइटी और फियर और परसेप्शन ऑफ पेन को चेंज कर देता है, एप्रीहेंशन को चेंज कर देता है। दिस इज ऑल फॉर ओपियोइड्स।